Hello guys, welcome all of you to my YouTube channel Engineering Things. So today we are going to discuss a topic related to communication system, and the topic is the demodulation of amplitude modulated wave. How we perform the demodulation of amplitude modulated wave, and the basic circuit and the basic demodulation circuit is known as envelope detector, or we can say diode detector. So that will be the topic of our today's discussion. Okay, so as you can see, this is our topic, AM diode detector. So first of all, we will start with basics of AM diode detector. Then after, we will see more about diode detector, how the circuit look like. Then after, we will see the diagram of diode detector, that is the overall circuit of diode detector. Then after, we will see the final components in diode detector explanation, and finally we will conclude with the how the demodulated wave after passing the diode demodulator, how the wave look like. Okay, so that is the topic of discussion today. That was the overview. So let's begin. So as you all know, it is for amplitude modulated wave. Okay, I hope that you know what is amplitude modulation. Let me give some basics of amplitude modulation very firstly. So amplitude modulation is nothing but a modulation scheme in which amplitude of message signal, that is amplitude, that is A, or we can say AC cos 2 pi FCT, that is AC is nothing but amplitude, or AM is nothing but AM in context of message signal and AC in context of carrier signal. Okay, so this is message signal amplitude and this is carrier signal amplitude. Okay, if the carrier signal amplitude, listen carefully, if the carrier signal amplitude is varied in accordance with the message signal components of the amplitude, then it is known as amplitude modulation. That is called as AM, amplitude modulation. Okay, this is the message signal A subscript small m, this is message signal amplitude. A subscript small c, this is carrier signal amplitude. If this carrier signal amplitude is varying in accordance with this message signal amplitude, then this is known as amplitude modulated wave. Okay, let me draw some diagrams of amplitude modulated wave. Okay, then you will have some clear cut idea how the waveforms look like. Okay, so this is our message signal. Suppose this is our message signal, a basic signal. Okay, then after we need some carrier signal. This is fast high frequency wave of carrier signal. Okay, this is AC and that was AM, and you will see how the modulated wave look like this. What I am drawing is nothing but the output of AM, that is AM modulated wave. So this will look like this. My drawing is little bit bad, so consider it. So this is final our AM signal. So हम लोगों ने क्या किया कि एक मैसेज सिग्नल लिया, ठीक है, जिसका पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड AM है, एक कैरियर सिग्नल लिया जिसका एम्पलीट्यूड AC है, ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी FC है जो कि ग्रेटर देन FM है, मीन्स मैसेज सिग्नल के फ्रीक्वेंसी से. देन आफ्टर what we used to do is we just use AM modulator. Okay, and AM modulator में पास करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे कैरियर सिग्नल अप्लाई किया, यहाँ पे मैसेज सिग्नल अप्लाई किया, एंड दिस इज आवर AM modulator आउटपुट. ओके, एंड दिस इज द फाइनल आउटपुट ऑफ AM modulated वेव. और इसको हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोगों ने एंटीना के थ्रू जहाँ भी हमको ट्रांसमिट करना था उसे ट्रांसमिट कर दिया. तो ये AM का मैंने अभी बेसिक्स बताया, ठीक है. अच्छा, चूँकि AM मॉड्यूलेटर इज़ नथिंग बट इन दोनों को प्रोडक्ट करने से हमें प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर यूज़ करते हैं, एक बैंड पास फिल्टर यूज़ करते हैं और हमें AM मॉड्यूलेटेड वेव जो कि ऐसा देखने को मिल जाता है, ठीक है. तो ये हुआ AM मॉड्यूलेटेड वेव. मैंने आपको AM का बेसिक्स बताया. ओके, नाउ वी विल डाइव इनटू हाउ टू डीमॉड्यूलेट दिस AM मॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेटेड वेव. इसका मतलब क्या, व्हाट डज इट मीन्स दैट कि आपके पास ये मैसेज सिग्नल था, आपने इसे सुपर इम्पोज किया विथ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल एंड यू आर गेटिंग दिस एज अ रिजल्ट. Finally, what you have to achieve at the outputs of receiver is again this. क्योंकि हम लोग का मैसेज जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, इम्पॉर्टेंट सिग्नल, दिस इज आवर मैसेज सिग्नल. ओके, कैरियर सिर्फ एज अ हम लोग ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है. तो हम लोग को यही चाहिए इन द एंड, बट इट इज़ समथिंग लुक लाइक दिस एट द रिसीवर्स इनपुट. सो रिसीवर के आउटपुट पे हमको फाइनली जो मेरा मेन इनपुट था, दैट वाज आवर मैसेज सिग्नल, इस तरीके से जो दिखता था, ये हमको फिर से चाहिए, ठीक है.
तो ये जो कन्वर्जन है दिस फ्रॉम दिस टू दिस इज डन बाय अ स्पेशल सर्किट एंड दैट इज नोन एज द AM डिटेक्टर सर्किट. So this was the basics of AM modulation, AM and AM detection. Okay, now we will dive into the more concepts of AM detection. So the very first point is written as the AM diode detector is an envelope detector. The main point is also this is also known as envelope detector. Why this is known as envelope detector? It will be clear to you in just few minutes. Okay, then after it provides an output of the envelope of signal. जो हमारा मैसेज होता है, ठीक है, जो दोनों सुपर इम्पोज्ड वेव है, इसका इन्वेलप का अगर बात करें, सो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज इन्वेलप. ओके, ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज इन्वेलप. अगर यही हमको आउटपुट में मिल जाए तो यही तो मैसेज सिग्नल है. सो इसीलिए इसे इन्वेलप डिटेक्टर कहा जाता है, क्योंकि ये जो सर्किट होगा ये इसके इन्वेलप को या फिर ट्रेस को कह सकते हैं डिटेक्ट करके हमको आउटपुट में दे देगा. ठीक है, तो दैट वाज द इन्वेलप डिटेक्टर. ओके, फिर सेकेंड लाइन एज अ थ्योरी लिखा गया है जो आप पढ़ सकते हैं. दैट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट एंड वी कैन सी एज सच द डायोड डिटेक्टर और डीमोडुलेटर इज एबल टू प्रोवाइड एन आउटपुट जो कि प्रोपोर्शनल होगा एम्पलीट्यूड ऑफ द इन्वेलप. जो भी मैंने अभी बताया ये एम्पलीट्यूड है इन्वेलप का, इसके प्रोपोर्शनल में आउटपुट मेरा वेराई करेगा. आते हैं डायरेक्ट इसके सर्किट्स पे. ठीक है, ये अगेन सम पॉइंट्स है, यू हैव टू रीड इट. ओके ओके, सो दिस इज द डायोड डिटेक्टर. ओके, इन्वेलप डिटेक्टर, डायोड डिटेक्टर. डायोड डिटेक्टर में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? सो देर इज अ डायोड और रेक्टिफायर. एज द नेम सजेस्ट्स डायोड डिटेक्टर देर विल बी अ डायोड. ओके, इसको रेक्टिफायर भी कहा जाता है डायोड को, जो कि क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा. ये मेन इंपॉर्टेंट वी कैन से सर्किट है इस डायोड डिटेक्टर में. ठीक है, और कंपोनेंट है. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो कि डायोड का डिफरेंट टाइप्स यूज़ कर सकते हैं. शॉर्ट की डायोड यूज़ कर सकते हैं हम लोग, डिफरेंट डायोड्स जो कि सिलिकॉन से बने होते हैं. ठीक है, उनका यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद एक फिल्टर होगा. ओके, और वो लो पास फिल्टर कहते हैं उसे हम लोग, और उस फिल्टर को लगा के, जो कि कैपेसिटर बेसिकली होता है और एक रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन होता है. और हम लोग फाइनली हमारा जो AM डीमोडुलेटर सर्किट है दैट इज़ द डायोड डिटेक्टर, कुछ इस तरीके से दिखता है. ठीक है, सो दिस इज़ आवर सिंगल डायोड डिटेक्टर. एक सिंगल डायोड लगा हुआ है. ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जो भी हमारे बताया कि दोनों सिग्नल देंगे, वो सिग्नल बना के यहाँ पे हम लोग एज ए इनपुट ऑफ ट्रांसफार्मर अप्लाई करेंगे. यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग, दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग, और यहाँ पे ये कपल होगा और हमारा सिग्नल यहाँ से डायोड के पास आएगा. ठीक है, अच्छा, अब कैसे हो, जैसे कि मेरा यहाँ पे जो सिग्नल आ रहा है, अगर आप ध्यान से समझे तो कैसा सिग्नल आ रहा है, इस टाइप का सिग्नल आ रहा है. लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट. सो इस टाइप का सिग्नल यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है ना, इस टाइप का सिग्नल यहाँ पे आ रहा है. ठीक है, कपल होगा, यहाँ पे आएगा. ठीक है, अब ध्यान से समझिए क्या होगा, कैसे इसका ऑपरेशन होगा, वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. लाइक दिस इज़ द स्टार्टिंग, यहाँ से होगा. ठीक है, डायोड को ये सिग्नल मिल रहा है. डायोड क्या होता है कि जब इसके एनोड पे देर इज़ अ पॉजिटिव सप्लाई और वी कैन से मोर एनोड वोल्टेज इज मोर देन कैथोड वोल्टेज, देन इट विल बी फॉरवर्ड बायस. तो फॉरवर्ड बायस में ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है. ठीक है, अच्छा, ओपन सर्किट की तरह जब रिवर्स बायस में होता है. ठीक है, अच्छा, जब ये सिग्नल इसको मिलेगा इस डायोड को, देखिए तो ये इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग मैनर में ये सिग्नल आगे बढ़ रहा है. तो दिस इज पॉजिटिव और दिस एनोड विल बी मोर नेगेटिव एज कम्पेयर टू दिस, सॉरी, एनोड विल बी पॉजिटिव एज कम्पेयर टू दिस कैथोड. सो डायोड क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा. अच्छा, ये सिग्नल जो आएगा, ये इतना तक अभी जो ट्रेस हुआ है डायोड के द्वारा, ये कैपेसिटर के पास आके जमा हो जाएगा. दिस कैपेसिटर विल बी चार्ज. ध्यान से समझिएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ओके, दिस इज कैपेसिटर एंड कैपेसिटर विल बी चार्ज अप टू दिस पीक, और इसे पीक डिटेक्टर भी इसीलिए हम लोग कह देते हैं. ठीक है, अच्छा, ये इतना पार्ट अभी कंप्लीट हुआ. ठीक है, अच्छा, अब ये जब नेक्स्ट आएगा तो ये देखिए डिक्रीजिंग मैनर में है. ओके, अब बात यहाँ पे इस तरीके से है कि ये एक्चुअली सर बोलेंगे दिस इज पॉजिटिव, तो सर ये पॉजिटिव वैल्यू पे भी डायोड कैसे ऑफ हो जा रहा है? दिस इज द रीज़न, बिकॉज देर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दिस. बिकॉज यहाँ पे जो अभी तक वोल्टेज जो कैपेसिटर के पास होल्ड है वही वोल्टेज इस टर्मिनल पे है. इन शॉर्ट वही वोल्टेज कैथोड का है. अच्छा, ये जो कैथोड का वोल्टेज है ये देखिए इस पीक तक है. सपोज दिस इज 5 वोल्ट. ओके, सपोज दिस इज 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट तक इसका कैपेसिटर चार्ज है, मीन्स इसके कैथोड पे 5 वोल्ट है. और ये अगर यहाँ से आप देखें इस पार्ट को तो ये 5 वोल्ट से कम है ऑब्वियसली. तो एनोड पे अब जो वोल्टेज है जो कि 5 वोल्ट से कम है, तो ये जो हमारा डायोड है वो क्या होगा, रिवर्स बायस. और रिवर्स बायस में ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा. तो देखिए इतना तो ट्रेस हुआ, ये पार्ट क्या होगा, यहाँ पे कैपेसिटर अब क्या होगा, ये डिस्चार्ज होगा. इस टाइमिंग के दौरान ये कैपेसिटर जो अपना होल्ड करके रखा था ये डिस्चार्ज होगा, और हम यहाँ पे हमको आउटपुट देखने को मिलेगा इस दोनों टर्मिनल के बीच में. फिर अपकमिंग जब यहाँ पे जो डिस्चार्ज हो जाएगा तो फिर ये पीक आया,
तो ये फिर पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे फिर एनोड जो है वो डोमिनेट करेगा एज कम्पेयर टू कैथोड। तो फिर जो ये पीक जो है नेक्स्ट पीक ये इसके द्वारा ट्रेस हो जाएगा और फाइनली अगेन कैपेसिटर चार्ज होगा और हमें कैपेसिटर चार्जिंग डिस्चार्जिंग होता रहेगा और आउटपुट हमें पीक के फॉर्म्स में वी कैन से इन्वेलप के फॉर्म में देखने को मिलता रहेगा। तो इस तरीके से ये पूरा जो सर्किट है ये ऑपरेट करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, सिंपल था। तो ये सर्किट था एम डीमॉड्यूलेटर का, जो कि डायोड डिटेक्टर है। सिंपल सा सर्किट हम लोग यूज़ करते हैं और बहुत सारे एप्लीकेशंस में ये यूज़ होता है जहाँ भी डीमॉड्यूलेशन करना होता है, क्योंकि ये सिंपल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है, डिसएडवांटेजेस कम है, ठीक है। तो ये हुआ आपका जो डायोड डिटेक्टर है, ठीक है। आगे इसके बारे में देख लेते हैं। ये लो पास फिल्टर क्या करता है, अब ये जो RC है इज़ नथिंग बट लो पास फिल्टर, वो सिग्नल को हमें पास कर देगा और लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स जो होगा वो मिल जाएगा और हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो कि कैरियर कंपोनेंट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो उसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए इसका जो हमारा सर्किट जो मैंने अभी बना के दिखाया था वो ऐसा देखने को मिला। दिस इज़ आवर इनपुट टू द डायोड डिटेक्टर। इस तरीके से इनपुट हमारा वेराई कर रहा है, ठीक है। ये हमारा मेन मैसेज सिग्नल है जो भी मैं अभी बना रहा हूँ। दिस इज़ आवर मैसेज सिग्नल, दिस इज़ आवर मेन कंपोनेंट, इसे हमें ट्रेस आउट करना है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो भरा गया है दैट इज़ द कैरियर सिग्नल। इस तरीके से कैरियर सिग्नल हैवी फ्रीक्वेंसीज में भरे हुए हैं, ठीक है। दिस इज हमारे, ठीक है। अब ये हम लोग डायोड डिटेक्टर का सिंबल है, एक डायोड और एक ब्लॉक, ठीक है। डायोड डिटेक्टर का ये सिंबल है। अच्छा, ये कैसा होगा, तो डायोड जब भी फॉरवर्ड बायस होगा तो ट्रेस को कंप्लीट करेगा और रिवर्स पे देयर इज़ अ रिवर्स ट्रेस एंड देयर इज़ अगेन यहाँ से फॉरवर्ड ट्रेस को कंप्लीट करेगा और इस तरीके से हमारा चार्जिंग डिस्चार्जिंग होता रहेगा और फाइनली एक फ़िल्टर लगा के हम लोग को इस तरीके से वैल्यू देखने को मिलेगा जो कि हमारा फाइनल आउटपुट होगा। देखिए, तो जो कि हम लोग का जो इनपुट था वो कुछ इस तरीके से था, ये देखिए, जो कि इनपुट था वो कुछ इस तरीके से था और आउटपुट भी देखें तो समहाउ ऑलमोस्ट बराबर होता है। तो इसे इस तरीके से डायोड क्या करता है कि हमारे पीक को डिटेक्ट करके फाइनली आउटपुट में देता है एंड दिस इज़ आवर मैसेज सिग्नल। और जहाँ भी रिक्वायरमेंट होगा इस मैसेज सिग्नल का लाउड स्पीकर पे जो भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे इसे यूज़ कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल था ये डायोड डिटेक्टर। सो इन दिस वे डायोड डिटेक्टर इज़ इम्पॉर्टेंट क्रूशियल सर्किट इन आवर AM डीमॉड्यूलेशन स्टेज, ओके। और सिंपलेस्ट है और ईजीएस्ट है और कॉस्ट इफेक्टिव है, ऑपरेशन समझना आसान है, ओके। सो दिस वाज द बेसिक्स ऑफ डायोड डिटेक्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।